हे गाइस, इट्स मी प्रे एंड कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 30। लास्ट चैप्टर है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट आई एम सो हैप्पी। ऐसा लग रहा है कि हमने कोई बहुत ही अच्छी चीज कर ली है, कोई बहुत ही बड़ी चीज कर ली है। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस फॉर स्टेइंग विथ मी। आई नो चैप्टर्स थोड़े स्लो आए, but we did it. We did it. We were like Charlie. We were the heroes of our own story. और अगर आपने पूरे 30 चैप्टर देखे हैं तो यार आपके लिए भी तालियां और मेरे लिए भी। हम लोग कितने पढ़ाकू हैं। Now let's go. Chapter 30. Charlie's Chocolate Factory. चार्ली की चॉकलेट फैक्ट्री। The great glass lift was now hovering high over the town. Inside the lift stood Mr. Wonka, Grandpa Joe, and little Charlie. "How I love my chocolate factory," said Mr. Wonka, gazing down. Then he paused, and he turned around and looked at Charlie with a most serious expression on his face. "Do you love it too, Charlie?" he asked. "Oh, yes," cried Charlie. "I think it's the most wonderful place in the whole world." जो शीशे की जो लिफ्ट थी वो अब जो है टाउन के ऊपर लटक रही थी। लिफ्ट के अंदर मिस्टर वोंका थे, ग्रैंडपा जो थे और चार्ली था। मिस्टर वोंका ने कहा, "ओह, मुझे कितनी मोहब्बत है, चाहत है मेरी चॉकलेट फैक्ट्री से," उसको देखते हुए। फिर वो रुके, वो मुड़े और चार्ली को देखा एक सीरियस एक्सप्रेशन से, बिल्कुल सीरियस होके। "क्या तुम्हें भी ये अच्छी लगती है, चार्ली?" उन्होंने पूछा। "ओह हाँ," चार्ली ने कहा, "ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है." "I am very pleased to hear you say that," said Mr. Wonka, looking more serious than ever. He went on staring at Charlie. "Yes," he said, "I am very pleased indeed to hear you say that. And now I shall tell you why." Mr. Wonka cocked his head to one side and all at once the tiny twinkling wrinkles of a smile appeared around the corners of his eyes. And he said, "You see, my dear boy, I have decided to make you a present of the whole place. As soon as you are old enough to run it, the entire factory will become yours." Charlie stared at Mr. Wonka. Grandpa Joe opened his mouth to speak, but no words came out. "मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई," मिस्टर वोंका ने कहा, बिल्कुल सीरियस तरीके से। अब तक जब वो बातें कर रहे थे थोड़ा फन में थे, एंजॉयमेंट में थे, अब वो सीरियस थे। अब वो चार्ली को देखते हुए कहते हैं, "हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के, बेशक, और मैं बताता हूँ क्यों। और अब मैं बताता हूँ क्यों।" मिस्टर वोंका ने अपना सर एक साइड पे किया और उनके चेहरे पे एक स्माइल आई और उन्होंने कहा, "देखो मेरे बच्चे, मैंने फैसला किया है कि पूरी जगह मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। जैसे ही तुम बड़े होगे, इसको चलाने के लिए इतने बड़े हो जाओगे, पूरी फैक्ट्री तुम्हारी हो जाएगी." चार्ली ने मिस्टर वोंका को घूरा और ग्रैंडपा जो ने अपना मुंह खोला बोलने के लिए, पर कोई अल्फाज बाहर नहीं आए। "It's quite true," Mr. Wonka said, smiling broadly now. "I really am giving it to you. That's all right, isn't it?" ये बिल्कुल सच है, मिस्टर वोंका ने बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा और कहा, "मैं ये सच में तुम्हें दे रहा हूँ, वो ठीक है ना?" "Giving it to him?" gasped Grandpa Joe. "You must be joking." "I'm not joking, sir. I am deadly serious. But, why should you want to give your factory to little Charlie?" "आप इसको दे रहे हैं?" ग्रैंडपा जो ने हाँकते हुए थोड़ा उससे कहा, "पर आप मजाक कर रहे हैं?"
मैं मजाक नहीं कर रहा सर, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। मगर मगर आप आप अपनी फैक्ट्री इसको क्यों देना चाहेंगे? Listen, Mr. Wonka said. I am an old man. I'm much older than you think. I can't go on forever, and I have got no children of my own, no family at all. So who is going to run the factory when I get too old to do it myself? Someone's got to keep it going, if only for the sake of the Oompa Loompas. Mind you, there are thousands of clever men who would give anything for the chance to come in and take over from me. But I don't want that sort of person. I don't want a grown-up person at all. A grown-up wouldn't listen to me. He wouldn't learn. He will try to do things his own way and not mine. So I have to have a child. I want a good, sensible, loving child. One to whom I can tell all my most precious, sweet-making secrets, while I am still alive. सुने, मिस्टर वंगा कह रहे हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। आप जितना सोच रहे हैं मैं उससे काफी बूढ़ा हूँ। मैं हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता। मेरे अपने कोई बच्चे नहीं हैं, ना मेरी फैमिली है। तो जब मैं बहुत ही बूढ़ा हो जाऊंगा इस फैक्ट्री को चलाने के लिए, तो इसको कौन चलाएगा? किसी को तो चलानी होगी, फिर चाहे वो सिर्फ उम्पा लुम्पास के लिए ही क्यों ना हो। राइट, वो वहां काम करते हैं। और हाँ, हजारों लोग हैं जो कुछ भी कर जाएंगे इस चांस के लिए, इस मौके के लिए कि वो यहाँ आए और मुझसे फैक्ट्री लें। पर मैं ऐसा इंसान नहीं चाहता। मैं एक बड़ा इंसान बिल्कुल नहीं चाहता। एक बड़ा आदमी मेरी बात नहीं सुनेगा, वो सीखेगा नहीं, वो हर चीज को अपने तरीके से करना चाहेगा, मेरे तरीके से नहीं। तो इसलिए मुझे एक बच्चा चाहिए, एक अच्छा, सेंसिबल, होशियार, अकल वाला, प्यार करने वाला बच्चा, जिसको मैं अपने बहुत ही अच्छे स्वीट मेकिंग कैंडी बनाने के सीक्रेट्स बता सकूं जब तक कि मैं जिंदा हूं। So that is why you sent out the golden tickets, cried Charlie. Exactly, said Mr. Wonka. I decided to invite 5 children to the factory, and the one I liked best at the end of the day would be the winner. But Mr. Wonka, stammered Grandpa Joe, do you really and truly mean that you are giving the whole of this enormous factory to little Charlie? After all, there's no time for arguments, cried Mr. Wonka. We must go at once and fetch the rest of the family. Charlie's father and his mother and anyone else that's around. They can all live in the factory from now on. They can all help to run it until Charlie is old enough to do it by himself. Where do you live, Charlie? तो इसलिए आपने गोल्डन टिकट्स भेजी थी? चार्ली ने कहा। बिल्कुल, मिस्टर वोंका ने कहा। मैंने फैसला किया कि मैं 5 बच्चों को इस फैक्ट्री में आने की दावत दूंगा, उनको यहाँ बुलाऊंगा, और फिर जो बच्चा मुझे सबसे अच्छा लगेगा दिन के आखिर में, वो विनर होगा। पर मिस्टर वोंका, ग्रैंडपा जो ने कहा। रुक रुक के उन्होंने कहा, पर मिस्टर वोंका, क्या आप सच में ये बड़ी सी फैक्ट्री छोटे चार्ली को दे रहे हैं? तो वो बोल ही रहे थे, मिस्टर वोंका ने उन्हें बीच में काट दिया, उनकी बात काट दी। बहस करने का वक्त नहीं है, हमें अभी जल्दी से जाना चाहिए और बाकी फैमिली को लेके आना चाहिए। चार्ली की अम्मी, उसके अब्बू और कोई भी और जो हो, उनको लेके आते हैं। अब से वो सब फैक्ट्री में रहेंगे, वो इसको चलाने में भी मदद कर सकते हैं, तब तक कि जब तक चार्ली इतना बड़ा ना हो जाए कि वो ये चीज खुद से कर सके, फैक्ट्री को चलाना। तुम कहाँ रहते हो, चार्ली? ये सब मिस्टर वोंका कह रहे हैं। चार्ली peered down through the glass floor at the snow-covered houses that lay below. It's over there, he said.
pointing. It's that little cottage right on the edge of the town, the tiny little one. I see it, cried Mr. Wonka, and he pressed some more buttons and the lift shot down towards Charlie's house. I'm afraid my mother won't come with us, Charlie said sadly. Why ever not? Because she wouldn't leave Grandma Josephine and Grandma Georgina and Grandpa George. But they must come too. चार्ली ने जो है ग्लास फ्लोर से देखा घरों को और कहा वो छोटा सा कॉटेज जो है टाउन के कोने पे वो वाला जो छोटा सा घर है मैंने देखा ये चार्ली ने कहा कि वहां पे है मैंने देखा कहा मिस्टर वोंका ने और उन्होंने कुछ बटन्स दबाए फिर जो है लिफ्ट चार्ली के घर की तरफ चलने लगी मुझे डर है कि मेरी अम्मी हमारे साथ नहीं आएंगी चार्ली ने कहा उदासी से क्यों नहीं मिस्टर वोंका ने पूछा क्योंकि वो ग्रैंडमा जोसेफिन ग्रैंडमा जॉर्जिना और ग्रैंडपा जॉर्ज को नहीं छोड़ेंगी चार्ली ने कहा फिर मिस्टर वोंका ने कहा पर उन्हें भी आना होगा They can't, Charlie said. They are very old and they haven't been out of bed for 20 years. Then we will take the bed along as well with them in it, said Mr. Wonka. There's plenty of room in this lift for a bed. You couldn't get the bed out of the house, said Grandpa Joe. It won't go through the door. You must not despair, cried Mr. Wonka. Nothing is impossible. You watch. The lift was now hovering over the roof of the Bucket's little house. What are you going to do? cried Charlie. वो नहीं आ सकते, चार्ली ने कहा. वो बहुत ही बूढ़े हैं और वो 20 सालों से बेड से नहीं निकले हैं. तो हम बेड भी ले आएंगे. लिफ्ट में काफी जगह है, मिस्टर वोंका ने कहा. ग्रैंडपा जो ने कहा पर आप जो है बेड जो है वो घर से बाहर नहीं ला सकते. वो दरवाजे से बाहर नहीं आएगा. ओह, आप लोग उदास नहीं हो, ये मिस्टर वोंका कह रहे हैं. कुछ भी नामुमकिन नहीं है. आप देखें. अब लिफ्ट जो है वो बकेट्स का जो छोटा सा घर है उसके ऊपर लटक रही है, उसके ऊपर खड़ी है. आप क्या करने वाले हैं? चार्ली ने कहा. I am going right on in to fetch them, said Mr. Wonka. How? asked Grandpa Joe. Through the roof, said Mr. Wonka, pressing another button. No, shouted Charlie. Stop, shouted Grandpa Joe. मैं उनको अंदर जाके लेने वाला हूँ, मिस्टर वोंका ने कहा. कैसे? ग्रैंडपा जो ने पूछा. छत से, मिस्टर वोंका ने कहा और एक बटन दबाया. नहीं, चार्ली ने कहा. ग्रैंडपा जो ने कहा रुको, चिल्लाया बेसिकली दोनों ने, चार्ली और ग्रैंडपा जो ने. नहीं, रुको. Crash went the lift right down through the roof of the house into the old people's bedroom. Showers of dust and broken tiles and bits of wood and cockroaches and spiders and bricks and cement went raining down on the 3 old ones who were lying in bed. And each of them thought that the end of the world was come. Grandma Georgina fainted. Grandma Josephine dropped her false teeth. Grandpa George put his head under the blanket. And Mr. and Mrs. Bucket came rushing in from the next room. Save us! cried Grandma Josephine. Calm yourself, my darling wife, said Grandpa Joe, stepping out of the lift. It's only us. क्रैश हुआ और लिफ्ट जो है उनकी जो छत है उससे घर की छत से नीचे आई डायरेक्ट बूढ़े लोगों के कमरे में जहाँ ग्रैंडपास और ग्रैंडमास हैं वहां पे. और वो आई तो उसके साथ डस्ट आई, टाइल्स टूटी हुई आई, वुड आई, कॉकरोचेस, स्पाइडर्स, ब्रिक्स, ईंटें, सीमेंट, सब कुछ नीचे आया उनके साथ. 3 बूढ़े लोगों पे जो वहां पे बेड पे सोए हुए थे, लेटे हुए थे. हर एक बूढ़े ने सोचा कि दुनिया खत्म हो रही है, राइट? दुनिया का खात्मा हो रहा है. ग्रैंडमा जॉर्जिना जो है वो बेहोश हो गई. ग्रैंडमा जोसेफिन जो है उनके जो नकली टीथ थे, दांत थे, वो नीचे गिर गए, उनसे ड्रॉप हो गए.
ग्रैंडपा जॉर्ज जो है उन्होंने अपना सर ब्लैंकेट के अंदर ले लिया। मिस्टर और मिसेस बकेट जो है वो भागते भागते दूसरे कमरे से आए, देखने के क्या हो गया। सेव अस, बचा लो हमें, ग्रैंडमा जोसेफिन ने कहा। ठंडी हो जाओ बेगम, ग्रैंडपा जॉर्ज ने कहा लिफ्ट में से निकलते हुए, ये बस हम हैं। Mother! cried Charlie, rushing into Mrs. Bucket's arms. Mother, mother, listen to what's happened. We are all going back to live in Mr. Wonka's factory, and we are going to help him to run it. And he is giving it all to me. And, what are you talking about? Said Mrs. Bucket. Just look at our house, cried poor Mr. Bucket. It's in ruins. अम्मी, चार्ली ने भागते हुए मिसेस बकेट को हक किया। राइट, अम्मी अम्मी सुने क्या हुआ। हम लोग मिस्टर वोंका की फैक्ट्री में रहने जा रहे हैं, हम उनको ये चलाने में मदद करेंगे और उन्होंने ये सब मुझे दे दिया और वो उन्हें बता रहा था। मिसेस बकेट ने कहा तुम क्या कह रहे हो? और बेचारे मिस्टर बकेट ने कहा हमारा घर देखो, ये तो खंडर हो गया है। ये पिक्चर है, चार्ली जा रहा है मिसेस बकेट के पास, उनको हक कर रहा है, ग्रैंडपा आ रहे हैं, पीछे मिस्टर वोंका आ रहे हैं। My dear sir, said Mr. Wonka, jumping forward and shaking Mr. Bucket warmly by the hand. I'm so very glad to meet you. You must not worry about your house. From now on, you are never going to need it again anyway. Who is this crazy man? Screamed Grandma Josephine. He could have killed us all. This, said Grandpa Joe, is Mr. Willy Wonka himself. It took quite a time for Grandpa Joe and Charlie to explain to everyone exactly what had been happening to them all day. And even then they all refused to ride back to the factory in the lift. I would rather die in my bed, shouted Grandma Josephine. So would I, cried Grandma Georgina. मेरे सर, मिस्टर वोंका आगे बढ़े और उन्होंने हाथ मिलाया मिस्टर बकेट का। मुझे काफी खुशी हुई आपसे मिलके। अपने घर की जो है आप टेंशन नहीं लें, फिक्र नहीं करें। वैसे भी आज से आपको इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पागल आदमी कौन है? ग्रैंडमा जोसेफिन ने चिल्लाया। ये हमें मार सकता था। ये मिस्टर विली वोंका खुद हैं, ग्रैंडपा जो ने कहा। ग्रैंडपा जो और चार्ली ने सबको चीजें बताई कि क्या क्या हुआ पूरे दिन में, और ये काफी टाइम लगा उनको, लेकिन इवन उसके बाद भी सबने कहा कि हम फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, इस लिफ्ट में नहीं जाएंगे। मैं मरना पसंद करूंगी अपने बेड पे, चिल्लाया ग्रैंडमा जोसेफिन ने। और ग्रैंडमा जॉर्जिना ने कहा मैं भी। आई रिफ्यूज टू गो, अनाउंस्ड ग्रैंडपा जॉर्ज। मैं जाने से इनकार करता हूँ, ग्रैंडपा जॉर्ज ने कहा। So Mr. Wonka and Grandpa Joe and Charlie, taking no notice of their screams, simply pushed the bed into the lift. They pushed Mr. and Mrs. Bucket in after it. Then they got in themselves. Mr. Wonka pressed a button. The doors closed. Grandma Georgina screamed, and the lift rose up off the floor and shot through the hole in the roof, out into the open sky. Charlie climbed onto the bed and tried to calm the three old people who were still petrified with fear. Please don't be frightened, he said. It's quite safe, and we are going to the most wonderful place in the world. Charlie is right, said Grandpa Joe. तो मिस्टर वोंका, ग्रैंडपा जो और चार्ली ने उनकी नाना नहीं सुनी, ना ही उनका चिल्लाना सुना। उन्होंने उनका बेड जो है वो लिफ्ट में उसको धक्का दिया तो वो अंदर चला गया। फिर उन्होंने मिस्टर बकेट और मिसेस बकेट को भी अंदर धक्का दिया। फिर वो खुद अंदर गए। मिस्टर वोंका ने एक बटन दबाया, दरवाजे बंद हो गए। ग्रैंडमा जॉर्जिना ने चिल्लाया और लिफ्ट जो है वो ऊपर गई, जो रूफ में छत में होल हुआ था उससे ही, और स्काई में चली गई। चार्ली जो है वो बेड पे चढ़ा और तीन बूढ़े लोगों को आराम दिलाने लगा। उनको कहने लगा कि भाई इट्स ओके, डरे नहीं। वो सारे डरे हुए थे काफी। आप डरे नहीं, ये सब बिल्कुल सेफ है।
बिल्कुल ठीक है, और हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह पे जा रहे हैं। चार्ली ठीक कह रहा है, ग्रैंडपा जो ने कहा। Will there be anything to eat when we get there? asked Grandma Josephine. I'm starving. The whole family is starving. Anything to eat? Cried Charlie, laughing. Oh, you just wait and see. फिर ग्रैंडमा जोसेफिन ने कहा कि वहां पे कुछ खाने को होगा जब हम वहां पहुंचेंगे। मुझे भूख लगी है, पूरी फैमिली को ही भूख लगी है। कुछ खाने को? चार्ली ने हंसते हंसते कहा, ओह, आप बस रुके और देखें। And that's it. We have done all 3 chapters. Are you happy? Because I'm so happy. It feels like such a good thing. So happy. अच्छा, मेरा दूसरा चैनल है जिसपे मैं पढ़ाती हूँ। एंड आई वाज थिंकिंग मे बी ये वाला चैनल सिर्फ वर्ड्स मीनिंग के लिए होगा, तो आगे जो कंटेंट आएगा, आगे जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी, तो वो उस पे ही आएगा। तो इस बुक की मैं सोच रही हूँ एक समरी की तरह, जस्ट इन उर्दू आई टेल यू स्टोरी, लाइक चार्ली था, उसका घर था, एंड जस्ट दैट। अगर आपको वो चाहिए या उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो लिंक्ड होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। एंड दैट्स वेरी मच इट। अच्छा, वो अपलोड भी वहाँ पे होगी। स्कूलिंग वूलिंग नाम है, इट्स ऑल्सो माई चैनल, आई यूजली टीच देयर। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो चेक कर लेना। आई विल अप्रिशिएट इट। And I'm just so happy. Like, I hope you are happy. I hope you understood stuff because मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर आप लोगों को भी चीज़ें समझ आई और अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और कोई भी और बुक वगैरह है जो आप चाहते हैं मैं समझाऊं या बताऊं तो लेट मी नो। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।